Well, students, very good morning. All of you warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Carmen Group of Schools. Students, nowadays we are studying third chapter in Hornbill, that is Discovering Tooth. The saga continues. This is the fourth and the last video of that chapter. Students, from very beginning, from the very first video, I have been giving you various facts regarding tooth. Let us recapitulate whatever we have read up to now. Discovering Tooth, the saga continues. This chapter provides a deep insight in man's keen desire to know and analyze the roots of our civilization. This passage transports us to Egypt, that is the land of pyramids and ancient civilization. The mummies which lie buried in those wonders of the world had startling fact to reveal about human life thousands of years ago. The discovery of Tooth's tomb in 1922 inspired many archaeological researchers to speculate about what happened to him, as he died an early and untimely death. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for years died when he was just a teenager. His body was laid to rest with gold and eventually forgotten. The lesson that we are studying, you can see that it is analyzing or it analyzes the advanced studies made on the causes of his death through CT scanning. In 1922, his mummy was excavated by Howard Carter, who was a British archaeologist. In 1968, another person who was a professor in anatomy had x-rayed the mummy. And now on 5th Jan 2005, his mummy was to be CT scanned. And the motto of this CT scanning is just to get the various information about the death of the Tutankhamun or Tooth. And the basic question, the most important question that is to get answered by any action that is taking place was, how did he die? This was the basic question. And we are looking whether this CT scanning gets sufficient information to answer the world, how did Tooth die 3,300 years ago? How did he die, or how did he meet his untimely end? We all know that he was just 9 years old when he became the king, and कि अपने टीनेजर में ही थे तभी वो पास अवे हो गया. अराउंड 9 इयर्स के थे तब वो थ्रोन पे आए थे, और 9 इयर्स के आसपास ही उन्होंने रूल किया था. 18 इयर्स के एज के आसपास थे जब वो पास अवे हो गया. क्या ये सीटी स्कैनिंग जो 5 जनवरी 2005 को हो रही है, क्या उसकी डेथ से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो दे पाएगी? हम लोग लास्ट क्लास में तूतनखामुन की फैमिली लाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे.
we were getting information regarding the family line of तूतनखामुन। हम लोगों ने देखा था कि आमेनहोटेप थर्ड जो थे वो या तो इनके तूत के फादर रहे होंगे या ग्रैंडफादर रहे होंगे। इन हिज टाइम इजिप्ट वॉज अ प्रॉस्परस स्टेट। उनके बाद आमेनहोटेप फोर्थ नामक एक व्यक्ति आया और उसने सारे के सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए। ही इंट्रोड्यूस्ड वेरियस चेंजेस, और वो जो चेंज था वो रिलीजन से संबंधित था। ही स्टार्टेड वर्शिपिंग एटन गॉड एंड डिक्लेयर्ड एटन गॉड टू बी द रेनिंग डाइटी। उन्होंने एटन को रेनिंग डाइटी के रूप में डिक्लेयर किया। सेकेंड चीज, अपना नाम चेंज किया। आमेनहोटेप से उन्होंने अपना नाम चेंज किया एखेनेटन। एक नई सिटी बनाई जो कि आज अमरना के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय उसने उसका नाम रखा था एखेनेटन। और ये डिक्लेयर किया कि ये सिटी अब थीव्स के स्थान पे नई रिलीजियस कैपिटल होगी। और जो सबसे खतरनाक काम किया था उसने ये किया था कि आमुन गॉड, जो कि वहां के पहले से एस्टैब्लिश्ड गॉड थे, आमुन गॉड की इमेजेस पे अटैक किया था। उसके टेम्पल्स को तोड़वा दिया था, बंद करवा दिया था। रे जॉनसन, जो कि डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लंजर, जो कि वर्क कर रहे हैं थीव्स के एंशिएंट साइट पे, उनका मानना था कि देयर इज नो क्वेश्चन रिगार्डिंग द पॉइंट दैट दिस टाइम वाज रियली अ हॉरिफिक टाइम। ये वो समय था व्हेन एक ऐसी डायनेस्टी, एक ऐसी फैमिली जिसने इजिप्ट पे सेंचुरीज रूल किया था, वो खत्म होने वाली थी। एंड एट दैट टाइम दैट किंग, जिसने अपना नाम एखेनेटन रखा था, वो वैकी हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद एक और मिस्टीरियस रूलर जो है, ही बिकम्स द किंग whose name was Ismankare, and he appeared briefly and exited with hardly a trace, without leaving a trace. वो आया, किंग बना और बिना कोई ट्रेस छोड़े चला गया। एंड आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद जो नेक्स्ट किंग बनता है, दैट वाज तूतनखामुन। उस समय एट दैट टाइम हिज एज वॉज अराउंड 9 एंड इट वॉज इन 1334 BC and he ruled till 1325 BC, meant around 9 years. तुत जैसे ही किंग बना, उसने पुराने वेज को रेस्टोर किया। आमुन गॉड की वर्शिप को रेस्टोर किया, अपना नाम चेंज किया, तूतनखामुन रखा। एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड एज, जो भी पुराने तरीके थे उनको रेस्टोर करने का प्रयास किया। ही, एज आई टोल्ड यू, ही reigned for about 9 years. Now let us move on to today's class. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. You know, he is very famous at the present time. हिस्ट्री में, स्पेशली इजिप्शियन हिस्ट्री में, जितना फेमस किंग वो है, जबकि उसका रूल केवल 9 साल का था, उतना फेमस कोई हो नहीं पाया।
उसकी फेम का मेन कारण था वो ट्रेजर जो कि उसके साथ दफन किया गया था। उसकी मम्मी फेमस इसीलिए हुई थी। कितना भी फेमस क्यों ना हो, और उसके एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, उसका जो फेट है उसके बारे में लोग कितना भी स्पेकुलेशन क्यों ना करते हो, द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट तुत इज वन ममी एमंग मेनी इन इजिप्ट। आज तुत क्या है? आज तुत इजिप्ट की ढेर सारी ममीज में से एक ममी है। जस्ट अ ममी। हाउ मेनी? मैंने कहा ढेर सारी ममीज। कितनी ममीज हैं? नो वन नोज। कितनी ममीज हैं इजिप्ट में? कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट व्हिच बिगैन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting. Here Madam A.R. Williams tells by this article that the Egyptian mummy project that has started inventory in late 2003, जो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट है जिसने कि ममीज की इन्वेंटरी लेट 2003 में शुरू किया था, उसने अब तक अराउंड 600 ममीज को रिकॉर्ड किया है। लेकिन अभी भी वो जो काउंटिंग है ना, दैट इज इन प्रोग्रेस। अभी तक आई मीन जिस समय ये आर्टिकल लिखा गया था इन 2005, 2 सालों में 600 ममीज को रिकॉर्ड किया गया था, और अभी तो 20 है, जो काउंटिंग है वो बहुत बढ़ गई। द नेक्स्ट फेज अभी तो काउंटिंग हुई। काउंटिंग के बाद आफ्टर काउंटिंग द नेक्स्ट फेज दैट टुक प्लेस इज द फेज ऑफ स्कैनिंग द ममीज। अगला फेज जो शुरू हुआ वो हुआ ममीज की स्कैनिंग करना विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन। एक पोर्टेबल सीटी मशीन के द्वारा ममीज की स्कैनिंग करना, ये नेक्स्ट फेज के रूप में शुरू हुआ। दिस आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस सीटी मशीन इज डोनेटेड टू द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट by the National Geographic Society and Siemens, जो कि इसके मैन्युफैक्चरर हैं इस सीटी मशीन के। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस ने डोनेट किया था आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को। उस सीटी मशीन के द्वारा इन ममीज की स्कैनिंग शुरू हुई। किंग तुत is one of the first mummies to be scanned, और किंग तुत की मम्मी जो फर्स्ट ममीज थी जिनको की स्कैनिंग करना था बिगिनिंग के दौर में, उन ममीज में से फर्स्ट मम्मी बनी किंग तुत की मम्मी। इन दिस वे यू विल फाइंड आउट किंग तुत वाज फर्स्ट इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। किंग तुत लाइफ में भी आगे थे और मृत्यु के बाद भी आफ्टर डेथ भी वो आगे हैं, क्योंकि जितनी ममीज हैं सारी ममीज की जो है वो सीटी स्कैनिंग होनी है। तो अपने कंट्री में से सबसे आगे वो उनके हेड का, उनके बॉडी का सीटी स्कैनिंग हो रहा है। A CT machine scanned the mummy head to toe. पहली इंफॉर्मेशन अबाउट CT मशीन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको बोलते हैं। CT मशीन क्या करती है? CT मशीन मम्मी का हेड टू टो स्कैन करती है, सिर से लेके पैर तक पूरा। और इस स्कैनिंग के दौरान इन द प्रोसेस ऑफ द स्कैनिंग इट क्रिएट्स
1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में ये क्रिएट करती है. Tooth's head is scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures. टूथ के हेड को 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में स्कैन किया गया, उसके इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स को रजिस्टर करने के लिए. टू रजिस्टर द इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स ऑफ टूथ्स हेड, it was scanned in 0.62 millimeter slices. It takes on every detail in the resulting images. और जो images सामने आए, that has given some eerie details, कुछ eerie details सामने दिए. With Tooth's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to prove the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. तो की इंटायर बॉडी को इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया. At the time of scanning that was being done on 5th Jan 2005, जिस समय स्कैनिंग चल रही थी, at that time a team of specialists in various fields like radiology, forensics, anatomy, each and every fields specialists were present over there, and they began to prove the secrets कि आखिर इनकी ब्यूरियल श्राइन को 3300 सालों तक प्रोटेक्ट कैसे किया गया. आई मीन, हाउ डिड द ब्यूरियल श्राइन ऑफ टूथ रिमेन्ड प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, एंड दे प्रूव द सीक्रेट्स. सीक्रेट के रूप में लोगों ने प्रूव किया कि जो विंग्ड गॉडेसेस थी, मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि वहाँ पे 4th गॉडेसेस की स्टैचुएट्स लगाई गई है श्राइन के रूप में. गॉडेस आइसिस, गॉडेस निफ्थिस, गॉडेस सेल्केट एंड गॉडेस नीथ. मैंने आपको सारी चारों गॉडेसेस की जो है इमेजेस भी प्रोड्यूस की है अभी आज के भी वीडियो की बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन के दौरान. उन लोगों ने ये प्रूव किया कि शायद यही जो विंग्ड गॉडेसेस थी ना, इन्होंने गिल्डेड ब्यूरियल श्राइन को प्रोटेक्ट किया. The night of the scan, workmen carried tooth from the tomb in his box. जिस रात को स्कैनिंग हो रही थी, the workman carried tooth from tomb in his box. जो वर्कमैन थे वो लोग टूथ को उनके टूम से, उनके टूब में जो बॉक्स, वुडन बॉक्स जिसमें हावर्ड कॉर्टर ने वापस रखा था टूथ को, वहां से उनकी बॉडी को बाहर निकाला. लाइक पाल बेरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प. पाल बेरर्स के तरीके वो एक रैम्प पे क्लाइम किए, एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द सोरलिंग एंड आउटसाइड, सोरलिंग सैंड आउटसाइड. और फिर ढेर सारी स्टेयर्स को जो है पे आगे आते पे चढ़ते हुए बाहर सैंड में, क्योंकि वहाँ पे तो ये पूरा डिजर्ट एरिया है, तो वहाँ कुल सैंड ही सैंड है, डिजर्ट है. तो डिजर्ट में बाहर निकले, एंड देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट. और फिर उसके बाद एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पे वो लोग राइज किए इनटू द ट्रेलर, और उस ट्रेलर में रखा हुआ था वो स्कैनर.
तो हाइड्रोलिक लिफ्ट से ट्रेलर में आए और ट्रेलर के बाद फिर स्कैनर तक पहुंचे, क्योंकि वो जो स्कैनर जो था वो पोर्टेबल स्कैनर दैट वाज केप्ट इन दैट ट्रेलर ओनली। 20 minutes later two men emerged। 20 मिनट्स तक स्कैनिंग का प्रोसेस चलता रहा। तभी एक जो है 2 लोग बाहर निकले, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, और तेजी के साथ बगल थोड़ी दूर पे एक ऑफिस थी इन लोगों की, वहां पे उस तरफ गए। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और एक पेयर वाइट प्लास्टिक फैंस के साथ वापस आए। क्यों? वॉट वॉज द नीड ऑफ फैन ओवर देयर? अरे भाई, द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। जो $1 million के एक्सपेंडिचर से बनाया गया वो जो स्कैनर था वो काम करना बंद कर दिया, क्योंकि कूलर फैन में सैंड, बताया था ना मैंने कि बहुत तेज हवा चल रही थी, खूब धूल उड़ रही थी, तो वो सैंड जो थी दैट उसने जो है कूलर फैन की वर्किंग बंद कर दिया। और जब कूलर फैन की वर्किंग बंद हो जाएगी तो स्कैनर गर्म हो जाएगा, स्कैनर काम करना बंद कर देगा। तो स्कैनर काम करना बंद कर दिया। गार्ड नर्वसली जोक्ड, जो गार्ड था उसने नर्वसली जोक किया, कर्स ऑफ द फैरो, ये फैरो का कर्स है, फैरो का श्राप है, लग गया सबको। सीटी स्कैन खराब हो गया, सीटी स्कैनर खराब हो गया। हम लोगों ने कर्स ऑफ द फैरो के बारे में पढ़ा है, जो कि वहां पे शायद इसलिए लिखा गया था ताकि कोई भी किंग तुत के ब्यूरियल ग्राउंड को डिस्टर्ब ना करे। इसलिए एक चेतावनी दी गई थी कि इफ एनी पर्सन विल स्नीक इनटू और ट्राई टू डिस्टर्ब द किंग फ्रॉम हिज इटर्नल स्लीप, ईदर ही विल मीट टू हिज डेथ और misfortune will fall upon him। So, और इस ये जो आपका ये जो फैरो का कर्स था उसके उसमें जो है उसको हवा दिया था लॉर्ड कार्नरवॉन, जिसने हावर्ड कार्टर को फंडिंग किया था। ही वॉज अर्ल ऑफ लॉर्ड कार्नरवॉन। उसकी जिस समय हावर्ड कार्टर ने 1922 में एक्सकेवेशन किया था, उसके 5 महीने के अंदर ही लॉर्ड कार्नरवॉन की डेथ हो गई थी। तो लोगों ने कहा कि देखो जो है लॉर्ड कार्नरवॉन जो है वो किए, वो मर गए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात को कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा अत्याचार किया किंग तुत के साथ, उनकी पूरी बॉडी को तोड़ दिया, उनके पूरे सामान को निकाल लिया है हावर्ड कार्टर, उनको कुछ नहीं हुआ। वो 66 इयर्स की एज में 1939 में, मतलब 22 to 39 से 17 इयर्स बाद जाके मरे। उनके ऊपर लागू नहीं हुआ, लेकिन लॉर्ड कार्नरवॉन की डेथ पे लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया। Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure। चलिए फिलहाल we were thankful to God कि जो substitute fans थे वो काम कर गए, प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। After checking that no data had been lost, ये चेक करने के बाद कि कोई डेटा लॉस्ट नहीं हुआ इसके अंदर का स्कैनिंग का, द टेक्नीशियंस टर्न टूथ ओवर टू द वर्कमैन। जो टेक्नीशियंस थे उन लोगों ने तुत की बॉडी को वापस वर्कमैन को सौंप दिया। एंड दे कैरीड हिम बैक टू हिज टम्ब। वो जो वर्कमैन थे वो वापस तुत की बॉडी को उसी टूम के अंदर लाए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago। तो
इनको ये लगभग 3 घंटे अपने उस कॉफिन से बाहर रहे। वो कॉफिन जहाँ पर कि 3300 ईयर्स एगो फ्यूनररी पीस्ट ने इनको सुलाया था रेस्ट इन पीस के लिए, वहाँ पे वापस रख दिया गया। 3 घंटे के लिए इनकी बॉडी को वहाँ से निकाला गया। बैक इन द ट्रेलर, अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस अप टू ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। वापस आते हैं ट्रेलर पे जहाँ पे स्कैनर है। वहाँ पर एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पे तुत की एस्टोनिशिंग इमेजेस पुल अप किया था। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स की स्कैटरिंग से एक ग्रे हेड बन के तैयार हो गया। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन वेरियस डायरेक्शन। और जो टेक्नीशियन था वो उनके उस हेड को वेरियस डायरेक्शन में टिल्ट कर रहा था, स्पिन कर रहा था। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। जो नेक वर्टिब्रे होता है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे एकदम क्लियरली दिखाई पड़ रहा था। इट वॉज विजिबल वेरी क्लियरली, जैसे कि एनाटॉमी की क्लास में एकदम अच्छे से दिखाई पड़ता है। नेक वर्टिब्रे, ओके। अदर इमेजेस रिवील्ड, और जो अदर इमेजेस थे उसमें एक हाथ सामने आया। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज के सेवरल व्यूज की जो है वहाँ पे स्कैनिंग की गई, मैंने व्यूज दिखाई पड़ रहे थे। एंड ए ट्रांजेक्शन ऑफ स्कल, और एक स्कल का भी ट्रांसेक्शन वहाँ पे था। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब प्रेशर खत्म हो गया था। सिटिंग बैक इन ए चेयर, जाही हवास स्माइल्ड। अपनी चेयर पे बैठते हुए जाही हवास ने कहा, विजिबली रिलीव्ड, अभी वो रिलीव दिख रहे थे। वो इस बात से संतुष्ट थे कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। नथिंग सीरियसली रॉन्ग हैड गॉन। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। उन्होंने कहा कि मैं कल एक रात एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी सो नहीं पाया। आई वॉज सो वरीड, होता है कि वो बहुत वरीड थे। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। वो अभी रिलैक्स थे, रिलीव थे। आगे अब हम जाएंगे और खूब सोएंगे, पहले अपनी सोने की इच्छा को पूरा करें। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, उस समय तक भर में जब हम लोग ट्रेलर से हटे, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए सैंडी ग्राउंड पे आए, एकाएक महसूस किया, वी फेल्ट द विंड हैड स्टॉप्ड। कि अरे वो हवा जो दिन भर यहाँ पे चल रही थी, खूब तेज चल रही थी, खूब सैंड उड़ रही थी, दैट विंड हैड स्टॉप्ड, वो हवा शांत हो गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, विंटर का मौसम था, जनवरी का मौसम था, तो विंटर था। विंटर एयर एकदम ठंडी थी। एंड स्टिल इट वॉज कोल्ड एंड स्टिल, जैसे कि डेथ होती है, कोल्ड एंड स्टिल। इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड, इन दिस वैली ऑफ जो डिपार्टेड लोगों की जो है डेड लोगों की वैली है, उस वैली में यहाँ की हवा भी एकदम ठंडी थी, डेथ की तरीके से। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ तुत्स टम्ब स्टूड ओरियन। तुत के टम्ब जहाँ से एंट्रेंस शुरू होता है उसके ठीक ऊपर ओरियन क्या है? ओरियन is the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris. तारों का वो समूह जिसको एंशियंट इजिप्शियंस जो हैं वो ओसिरिस की आत्मा के रूप मानते हैं। और ओसिरिस कौन है? वो आफ्टर लाइफ के गॉड हैं। वो कॉन्स्टलेशन, ओसिरिस कॉन्स्टलेशन ठीक उसके ऊपर चमक रहा था, वॉच कर रहा था बॉय किंग को मिला के। यहां पे ये दिखाया गया कुछ हल्का फुल्का कि ओसिरिस जो गॉड है आफ्टर लाइफ के, वो गार्ड करते हैं किंग तुत के बॉडी को। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द
In this way, your this chapter comes to an end. We shall continue with the next chapter in the new class. Thank you. Have a nice day.